Ravi sir, good morning sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sir, are you able to see my video and hearable to my voice? Yes, yes. Can I start, sir? Please. Okay, thank you, sir. Sorry for the 5 minutes because just I completed the previous section, sir. 9 No to 10. problem, sir. No problem. Thank you, sir. Thank you. Friends, good morning, all of you. Once again, I welcome to all of you for today. VBA means Visual Basic for Applications, virtual online class. So, friends, here today we'll be entering directly into the programming section. So before starting this practical section of this VBA, I'm thankful to all of my trainees who are joined in this morning section, as well as I'm thankful to my PGT department and IT sales. They are provided this type of environment to conduct these virtual classes. Huh? చేసే ఉంది VBA loops. పెట్టాను అన్న చూడు Ravi sir, my screen was shared. Sir, it is not visible. Black screen आ रहा है. हाँ वही इसीलिए वही देख रहा हूँ सर. बाकी सारा फाइल्स बंद करके सिर्फ वही फाइल खोलिए सर. हाँ ये कर देता हूँ सर. ये लग रहा है. అయితే ఓపెన్ చేసి ఎక్సెల్ ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి చేస్తున్నావు చూడు sir, now it is open sir. Yes sir, visible. Okay friends, please in the last class we have discussed about the arrays, but here I want to cover or finish this arrays and some looping concepts. Monday onwards we can start new session. Once again I thankful to all my staff members. So due to the less time, I want to utilize their time for programming practical purpose. Directly I will enter into the programming section. Theory part हमने बहुत दिन कवर किया है. आज के क्लास में प्रैक्टिकली कुछ चीज हम देखेंगे. तो फॉर लूप और व्हाइल लूप सबको पता है, तो लेकिन मैं डू व्हाइल लूप में एक दिन सिर्फ मैंने बताया है. तो उस दिन सपोज वन समथिंग इज इंटरप्टेड. So here what happened, I want to cover save my time, so already written here. Look at here, I was taken the one button and put it here on my screen. कैसे लेकर आ सकते हैं हम डेवलपर पर जाके, फिर इंसर्ट में जाके, फिर ये बटन का सहायता से एक्टिवेक्स कंट्रोल से लेकर आके फिर इसमें डबल क्लिक करके फिर ये है प्रॉपर्टीज का अंदर कैप्शन में जाके चेंज करना, सबको पता है. डू व्हाइल अप टू 10 numbers. So here actually in other languages what happened, if you want to run your loop at least once time without checking the condition, first do then while. C++ and other languages.
but in VBA there is no such type of environment, but here the entire difference is लिखने का तरीका डिफरेंस, बस यू डू वाइल कंडीशन, वाइल जैसे कंडीशन देते हैं हम, लेकिन वेंड का जगह पर लूप नाम से. So here, look at here, I want to show this program. I am implementing my coding with the help of do while concept. Im counter variable I is equal to 1, do while I is less than or is equal to 10, cells I comma 1 dot value is equal to 1, I is equal to I plus 1, increment loop. ये पहले I वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्लेयर किया एज इंटीजर, इनिशियलाइजेशन किया मैंने, I is equal to 1, स्टार्टिंग वैल्यू बताया, मेरा लूप कहाँ से चलाना है. Do while, do and while result words while loop names in the bracket condition I is less than or is equal to 10, यानी मेरा I वैल्यू 1 से लेकर 10 तक करना है. I वैल्यू 10 से कम या 10 तक बराबर है तो तब करने के लिए. तो ये 1 मीन्स I वैल्यू 1 है तो 1 comma 1. First I value 1 will indicate the row, second one column 1 means A, then dot value is equal to I. अगर I 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, 2 है तो 2 प्रिंट करता रहता है. इस तरह 10 बार चलेगा. फिर अब इसको आई थिंक यू आर विजिबल, आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोग्राम. इसकी ये बटन के अंदर लिखा है, डेवलपर पर गया मैं, डिजाइन हटा दिया, फिर रन करो मैं, ठीक है, ऊपर से 1 to 10 हटा दिया मैंने दोबारा, फिर रन कर रहा हूं मैं. ये लूप है बैक एंड में, डू वाइल लूप. ये डू वाइल लूप होने के कारण से रिजल्ट इधर प्रिंट करने लगा. देखिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन हियर. इन एनी प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो डिम आई एज इंटीजर, आई ए काउंटर वेरिएबल को मैं काम में लेना चाहता हूं. आई इज इक्वल टू 1, डू वाइल, सेकंड डू लूप, पर लूप, वाइल लूप, देन थर्ड वन इज डू वाइल. तो डू वाइल विद इन द ब्रैकेट कंडीशन आई इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो सेल्स लूप का अंदर हमने क्या करते हैं, सेल्स का कमेंट से हम लिखते हैं, अगर बिना लूप है ना तो रेंज. तो सेल्स को बिना लूप से भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर लूप्स के अंदर काम में लेते हैं. तो सेल्स मींस रो कामा कॉलम. फर्स्ट आई वैल्यू 1 कामा 1 मींस रो, ये 1 मींस कॉलम, ये 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई, आई 1 होते समय पर 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर प्रवेश करेगा. सो 1 कामा 1 पर 1 लिखेगा इधर 1. फिर नेक्स्ट आई वैल्यू 2 होगा, ऊपर जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सही है. फिर अंदर जाके आई वैल्यू 2 हो गया, 2 रो, फर्स्ट कॉलम वही है, आई वैल्यू क्या हुआ 2. इस तरह 10 तक प्रिंट करने के बाद अगर मान लीजिए आई वैल्यू 11 हो गया तो क्या होगा, ऊपर जाके 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ये क्या बताता है, 11 इज लेस देन 10, 11 10 से छोटा, गलत है. और 11 इज इक्वल टू 10, 11 10 से बराबर बता रहा, वो भी गलत है. तो कंडीशन, दोनों कंडीशन फेल होने के कारण से ये वाइल लूप फेल होगा. फिर लूप का आगे रुकिएगा, स्टॉप कर देगा ये. तो बार बार मैंने बताया कांस्टेंट वेरिएबल्स का डिफरेंस. शुरू में अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कृपया मेहरबान से अब समझने के लिए कोशिश कीजिए. सपोज फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, नाउ इटसेल्फ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. शुरू में आपको समझ में नहीं आया होगा वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या है. अब कांस्टेंट क्या है, ये लूप मतलब मैं बोल रहा हूँ कोडिंग. ये देखिए आई इज लेस देन और इज इक्वल टू 10, आई ये 10 कांस्टेंट कह लेते हैं, आई वेरिएबल. सो बार बार वेरिएबल बदलता जा रहा है, लेकिन ये 10 एंटायर प्रोग्राम में कभी भी नहीं बदलेगा, तो 10 से ही बार बार कंपेयर करेगा. तो मैं ये प्रोग्राम को 10 बार चलाऊं, 100 बार चलाऊं, मैं रिजल्ट वही मिलेगा. 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देते हैं. ये अभी मैंने चलाया, फिर मिटा दिया मैंने, देखिए दोबारा चलाया और मिटा दिया. इस तरह जितना बार आप चलाए वही आंसर आएगा, क्योंकि कंडीशन का जगह पर हमने क्या किया है, 10 एक कांस्टेंट को बताया है, तो 10 तक ही करना है. अगर 10 तक नहीं है, n तक, मतलब n वैल्यू में कीबोर्ड से रीड करना चाहता हूँ, रैंडमली अलग अलग वैल्यूज देना चाहता हूँ. So according to the n value, if you want to print the numbers, then you can use instead of the 10, you put the variable n. अगर आप अलग अलग
एन वैल्यू को कीबोर्ड से अलग अलग वैल्यूज को देके पहली बार 50, दूसरी बार 100, तीसरी बार 500, इस तरह अलग अलग वैल्यू देके आप नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये 10 का जगह पर n वेरिएबल को काम में लेना पड़ेगा। तो n काम में लेने के लिए क्या करना, सिर्फ अब देखते रहिए आउट आई चेंज दिस प्रोग्राम। I declared n another variable integer, ये स्टार्टिंग i is equal to 1 वही रहेगा। do while i is less than 10 का जगह पर सिर्फ n लिखना है, बस इतना है। तो I am explaining to a simple way, एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं मैं। I want to give the simple basic buildings fundamentals only, okay, so please try to understand। instead of 10 पहले क्या होते थे, इधर 10 लिखा था, इसलिए 10 बार चलाते समय पर क्या करते थे, वही 10 को 10 तक ही प्रिंट करते रहते थे। अब n एक वेरिएबल लिया मैंने, फिर n ले लिया तो n को क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा। We are declared n as a variable, so variable can hold a value in the memory location, but you can assign the variable value or you can read the value to keyboard। तो अलग अलग देने के लिए कीबोर्ड से लेना पड़ेगा। n is equal to input box, फिर ब्रैकेट्स में enter n value, enter the n value to print numbers, इतना नहीं तो मैं ये लिख दिया बस। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस ऐड किया मैंने, एक n वेरिएबल को ऐड किया, फिर n को रीड कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर नंबर, देन डू व्हाइल i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 का जगह पर n रखा, बाकी चीज वही है। तो अगर मैं C पर प्रिंट करना चाहता हूँ अंतर दिखाने के लिए, तो C ये 1 कॉलम, B सेकंड कॉलम, C थर्ड कॉलम, सो कॉलम वैल्यू क्या है, 1 का जगह पर 3 लिखना है, बस रिमाइनिंग सेम। So the same thing I put it here, observed in this code। I am running, can give the n value 20, look at here up to 20 print कर दिया, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कर दिया। सर I want to see, अगर आप अंदर ये बटन का अंदर कोडिंग देखना चाहते हो तो देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं देगा होगा लेकिन बाहर लिखा वही है, dim I comma n as integer, I is equal to 1, n is equal to input box enter n value, do while I is less than or is equal to n, cells I comma 3 dot value is equal to I is equal to I plus 1, loop and sum। वही कोडिंग है जो ऊपर मैंने अभी आपका सामने लिखा है। इसको हम रन करने के समय पर क्या होगा, आप जितना बार रन कीजिए उतना बार n वैल्यू पूछेगा आपसे, अगर आप जितना नंबर देते हो उतना तक प्रिंट करते थे। ऐसा नहीं, हटा दिया मैंने, 20 दिया आपके सामने, अभी सपोज मैं 50 देता हूँ, तो लुक एट हियर 1 2 3 4 लाइक अप टू 50, ये देखिए प्रिंट किया है। फॉन्ट साइज छोटा होने के कारण से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा। So that is the advantage of the variable। अगर कीबोर्ड से वेरिएबल रीड करने में फायदा वही है। अब डू वाइल विथ कांस्टेंट, डू वाइल विथ एंड हमने डिस्कस किया। डू अंटिल में क्या कहा हमने, नेगेटिव अप्रोच, उल्टा कंडीशन, उल्टा मानता है ये, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होगा तब लूप से बाहर आ जाता है। इसके लिए क्या है, सपोज देखिए मैं ये तो स्क्रीन शीट ले लीजिए प्लीज, अगर किसी चाहिए तो, फिर हटा देता हूं मैं, क्योंकि फिर डू अंटिल लूप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डू अंटिल लूप में क्या कहा हमने, देखिए डू अंटिल उल्टा का नेगेटिव कंडीशन, ठीक है ना, तो ऑपोजिट कंडीशन देना पड़ेगा। ये तो स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स, ज्यादा लिखना नहीं चाहते। फिर लूप बस कॉमन है, आई तो ऊपर बताना पड़ेगा, अगर लूप के अंदर लिखना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू, आई इसमें रखते हैं हम, नीचे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए क्या कहते हैं हम, आई इज इक्वल टू आई प्लस, ठीक है। तो ये अगर इस कंडीशन में क्या, मैं नेगेटिव कंडीशंस क्या, लुक एट हियर, आई इज लेस देन और इज इक्वल टू 10, क्या ये पॉजिटिव कंडीशन नॉर्मली, लेकिन इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा क्या है, देखिए प्लीज, आई इज लेस देन और इज इक्वल टू 10 मीन्स मेरा आई वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होते समय पर जिस लूप को चलाना चाहता हूं मैं, तब ऐसे लिखना, व्हाइल लूप वगैरह, डू व्हाइल।
लेकिन डू अंटिल में क्या है, इसको रिवर्स देना है, लेस देन का जगह पर ग्रेटर देन, इज इक्वल टू तो 9 तक प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने लगा 10, जब कंडीशन ट्रू है तो बाहर आ जाता है, उल्टा कंडीशन। डू अंटिल नेगेटिव कंडीशन, माइनस वैल्यू -0 भी दे सकते हैं। अभी हम 10 होने तक करना है, तो 10 होने तक करना है, तो फिर ए भी 10 नंबर्स मान लीजिए, तो इसके लिए ये रहा ये। तो डेवलपर पर गया मैं, फिर डिजाइनिंग मिटा देता हूँ, रुकिए, टीम आई एज इंटीजर, आई इज इक्वल टू 1, ये रिमार्क्स है। देखिए इन आई इज ग्रेटर देन 10, अगर इक्वल आ गया तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू माना जाता है, लूप से बाहर आ जाता है, यानी आई इज इक्वल टू 10 है तो 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो उल्टा होना चाहिए हमेशा, जब कंडीशन ट्रू है तो नेगेटिव है तो बाहर आ जाता है, इसलिए 9 तक प्रिंट कर देगा। अगर इज इक्वल हटा दिया तो 10 तक प्रिंट कर देगा। सो डू, अगर 10 तक हमने प्रिंट करना है, इज इक्वल हटा दिया, डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 10, मेरा आई वैल्यू अभी 10 से ज्यादा नहीं है, आई वैल्यू अभी इनिशियल में स्टार्टिंग में क्या 1 है, प्लीज कंसंट्रेट दैट थिंग, our initial starting i value is only 1, not the 10 11 12 13, लेकिन ये क्या बता रहा, i is greater than 1, यानी i वैल्यू 10 से बड़ा होने तक करिए, तो मतलब ये सेल्स i, 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू i वैल्यू, जो भी 1 2 3, i इज इक्वल टू i प्लस 1। अगर आप देखिए, इसलिए डाउट स्टूडेंट्स का डाउट है, ये i क्या बता रहा है, सेल्स का अंदर फर्स्ट वन i j k व्हाटएवर इट मे बी, first number will indicate the row, second one indicate the column, so 5 column की जगह पर 5 लिखा, a b c d e means e column के अंदर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 e में रिजल्ट चाहिए, तो फिर कॉलम का जगह पर 5 लिखना है। सो फिर आई वांट टू रन दिस कोडिंग, डिजाइन हटा दिया, देखिए सेम ये डू वाइल जैसे जितना बार रन कीजिए उतना बार टनी प्रिंट कर, क्योंकि ये डू अंटिल है नेगेटिव कंडीशन, लेकिन डायरेक्ट नंबर दिया हमने, कोडिंग में गया मैं, देखिए इधर, सो हियर अगर आपको इज इक्वल टू डल लगाया है कोडिंग के अंदर, तब क्या होगा, देखिए बाहर आके केवल 9 तक ही प्रिंट कर देता है। अब आपको डाउट है कैसे हुआ है, मीन्स कोडिंग देखना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, सो हियर क्लिक किया मैंने, देखो कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, कर दिया, ऊपर रख रखा हूँ, टीम आई एज इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ये कमेंट्स भूल जाइए, डू अंटिल, देखिए हटा दिया, हाँ ये है हमारा कंडीशन, डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो इज इक्वल होने के कारण से आई वैल्यू 10 है तो 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स होते समय पर काम करेगा नेगेटिव अप्रोच, इसलिए 9 तक प्रिंट करके बाहर आना है। सेल्स i, 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू i इज इक्वल टू i प्लस 1, डू अंटिल का टर्मिनेशन एंडिंग लूप है। ओके, अगर उसी को भी क्या करना है, अभी सेम n वैल्यू है तो n डिक्लेयर करके n कंडीशन के अंदर लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते, अभी डबल अरे के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, अलग अलग वैल्यूज को भी हम स्टोर करना है मैट्रिक्स में, स्ट्रिंग न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन डाटा, अभी देखते हैं हम इसका बाद। अब देखिए इधर, अगर वही डू मींस डू अंटिल का साथ एक रैंडमली वैल्यू रीड करके प्रिंट करें, तो उसके लिए क्या है, देखिए डेवलपर पर गया मैं, डिजाइन मोड में कोडिंग दिखा रहा हूं मैं आपका, सेम कोडिंग है, सिर्फ n को हमने क्या किया है, n डिक्लेयर करके कीबोर्ड का सहायता से हम रीड करना है, m i comma n as integer, i is equal to 1, n is equal to input box enter n value, ये कमेंट ये बता रहा है, अगर आपको चाहे तो नोट करिए, इन i is greater than or is equal to 10, equal is occurred means i is equal to 10, then condition is true, it exits the loop। अगर is equal to लिखा है अपने कंडीशन में तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू माना जाता है, ट्रू होगा, फिर ट्रू होने के कारण से उल्टा है तो इसलिए बाहर आ जाता है। देखिए प्लीज मेक इट स्क्रीनशॉट और फोटो व्हाटएवर इट मे बी, इस बात
ये कहां पर सर जी? ये है डू अंटिल एंड बटन का अंदर कोडिंग में बाहर लेकर आया हूं मैं। ये कमेंट्स है सिंगल कोटेशंस। सो नाउ आई वांट टू रन दिस वन, मेक इट प्लीज ये फोटो दिस वन। ओके, आई थिंक यू पीपल्स आर डन। आप लोगों ने किया है ये मान के चलता मैं हटा दिया। अब इस रन करता मैं इसको रन कर रहे हैं अभी हम। डू अंटिल विथ एन। अब एन वैल्यू पूछेगा कहां तक प्रिंट करना है, तो रन करने के लिए डेवलपर डिजाइन हटा दिया मैंने। एंटर एन वैल्यू, इस बार 15 दिया मैंने, तो 1 to 15। कैसे? ना वाइल लूप ना डू वाइल, ये तीसरी तरीका है डू अंटिल। ओके, सो अगेन आई वांट टू रन, मैं दोबारा रन करना चाहता हूं फ्रेंड्स। एन वैल्यू 30, 1 2 3 4 अप टू 30। ये रहा। स्क्रीन बढ़ा रहा हूं मैं, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, नंबरिंग ऑटो सीरियली जनरेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मिटा दिया मैंने। आप वही 30 देख के करते हैं। एन वैल्यू 30, अगर इज इक्वल टू मैंने दिया है कोडिंग का अंदर, क्या होगा? जो लास्ट एन वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। वैसे डेवलपर डिजाइन के अंदर गया है, जहां पर हमने इज इक्वल नहीं लगाया है, इज इक्वल लगा के फिर रन करते हैं। ये डू अंटिल, ध्यान रखना उल्टा कंडीशन का साथ हम कर रहे हैं। फिर डिजाइन हटा दिया, ये डू अंटिल। इस बार सपोज मान लीजिए मैं 20 देता हूँ, 19 तक ही प्रिंट करेगा। 1 2 3 4 5 up to 18 19, there is not 20। अगर ज्यादा दूर गया आप समझ नहीं पा रहे तो फिर 10 5, दोबारा रन कर रहे हैं हम, 10 9 तक प्रिंट कर देगा। 5 up to 4। Why? Because you are adding the is equal symbol। Okay, I think you are understand that one। मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर next friends, in last class we are discussed about the arrays। array used to store multiple values in a single variable। एक ही वेरिएबल के अंदर अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमने नेम्स रीड किया, 5 नेम्स, 10 नंबर्स को रीड करके प्रिंट किया, सम एंड एवरेज भी, शॉर्टिंग भी किया है। 2 दिन डिस्कस किया हमने, मैट्रिक्स भी डिस्कस किया है, 2 डायमेंशनल एरे। लेकिन आज मैंने कल का क्लास में आप लोगों से कहा एक ही एरे का अंदर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स look at here, I want to delete this one। So look at here, designing mode, already I written this code। I want to save the time now, so due to that reason, so that program मैंने क्या किया, बटन का अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम को बाहर लेकर आया आपको दिखाने के लिए। ये कुछ तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, ठीक है? डोंट फील एनीथिंग। जो बटन का पीछे जो कोडिंग है वही सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बाहर कॉपी पेस्ट किया हूं, ताकि आप लोगों भी प्रैक्टिस कर सके हैं। लिखने में टाइम लगेगा तो फोटो कॉपी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीम एरे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एलिमेंट्स 5, तो फिर क्या है? एरे ऑफ 0 असाइन कर रहा हूं 10, नंबर को एज ए स्ट्रिंग में डबल कोटेशन में। एरे ऑफ 1 में VBA स्क्रिप्टिंग स्ट्रिंग। एरे ऑफ 2 100 नंबर। एरे ऑफ 3 2.45 डेसिमल। एरे ऑफ 4 ये डेट फॉर्मेट में हैश इंक्लूड के साथ प्रीफिक्स वैल्यूज कहते हैं हम, ये यूज किया। फिर 5 यानी 30 एलिमेंट के अंदर क्या किया है? टाइम को स्टोर किया है, ठीक है? सो एक ही एरे है, एरे वेरिएबल नेम इज एरे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एरे नाम चेंज करेंगे, ठीक है? एरे नाम क्या देंगे हम? अनु, तो सम x, my array name is x। so then what can I do in place of array? I can simply use that array name। सबस्क्रिप्ट तो वही रहेगा ना, 1 2 3 4 अप टू 5 6 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मैंने नेम्स के बारे में डिस्कस किया, s name of 5।
देखिए इधर का कोडिंग मीन्स जो स्क्रीन पर पड़ा हुआ कोडिंग को मैं बटन के अंदर नहीं कर जाऊंगा, तब तो समझ में आ जाएगा आपको। एरे चेंज किया मैंने, फिर मैसेज बॉक्स के द्वारा मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसी वैल्यूज को, एरे नेम एक्स, क्योंकि एक मैसेज बॉक्स के अंदर कंटिन्यूटी के लिए एंड सिंबल यूज करना है। सो ये है व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक सिंगल एरे के अंदर अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज को स्टोर कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इधर तक, ये बाद में इंप्लीमेंट करेंगे अगर एक मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करना है वैल्यूज को। आप देखिए फ्रेंड्स प्लीज, ये मैं कॉपी कर रहा हूं मैं बटन के ऊपर। सो बटन पर जाने के लिए क्या है, मेरा बटन उधर रहेगा, मतलब कमेंट्स डेवलपर, ये वाली बटन है जो ये कोडिंग है ना, इसका जगह पर ये पूरा मिटा रहा हूं मैं। देखिए खाली कर दिया, जो स्क्रीन पर लिखा है उसको कॉपी किया इस बटन का। अगर इस कमेंट से आपको कंफ्यूजन है ये भी हटा देता। डेट टाइप टाइम टाइप बताने के लिए कमेंट्स लिखा हमने। अब इसको रन करेंगे, सेव किया है, नीचे वाली भी कोडिंग हटा दी है मैंने, ठीक है। क्या किया मैंने, जिस कोडिंग इसको मैंने बटन के अंदर कोडिंग के अंदर पेस्ट किया है एक्सेल स्क्रीन से, ठीक। तो ये है कंट्रोलिंग वाली बटन, अगर रन किया तो फिर इधर डिस्प्ले करेगा। अभी स्क्रीन पर तो नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया, मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट कर रहे हैं हम। तो रन करके देखते हैं होता है क्या। देखिए वैल्यू स्टोर्ड इन एरे इंडेक्स 0 में 10, अलग अलग मैसेज बॉक्स लिखा ना 5-6 बॉक्स। वैल्यू स्टोर्ड इन एरे इंडेक्स 1 VBA स्क्रिप्ट, वैल्यू स्टोर्ड इन इंडेक्स 2 100, देखिए 2.45 फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल, 25/4/2020 मींस आज का डेट लिखा मैंने, ठीक है। सो टाइम 12:45। so that means what happened, you please try to understand, नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, VB स्क्रिप्ट स्ट्रिंग है, ये है डेसिमल है, ये डेट है, ये टाइम है। दैट मींस अलग अलग डाटा टाइप्स को हमने क्या किया, एक ही सिंगल वेरिएबल का अंदर हमने स्टोर किया है। सो VBA का अंदर एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट, एडिशनल मतलब प्लस पॉइंट ये है, अगर एक ही वेरिएबल के अंदर हम अलग अलग डाटा टाइप वैल्यूज स्टोर कर सकते। सी लैंग्वेज में C++ में क्या, array can hold more than one elements, one items of the same data type। इंटीजर डिक्लेयर किया तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, but here in VBA if you are not mentioned any data type you can save mixed data types। VBA के अंदर अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय पर डाटा टाइप मत बताइए, अगर बता दिए तो फिर आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन बता दिया आपने। इंटीजर बताया तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, मैंने क्या किया dim x of 5, बस x of x के ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इतना तो पता है उसको, x एक साधारण वेरिएबल नहीं है, एक अरे है। अरे सही से बताया हमने, 5 मीन्स 0 से लेकर 5 6 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए 6 आइटम्स, लेकिन वो 6 आइटम्स में कुछ भी मीन्स नंबर, इंटीजर, फिर स्ट्रिंग, डेट, अलग अलग डाटा दिया। अगर इसको एक्सेल शीट पर प्रिंट करना है तो एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए क्या, सपोज मैं कहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, ये के जे तक तो 10 है, बाद में आराम से गिनती कर लीजिए, के तक 11, सो के तक 11 है तो क्या होगा 11th कॉलम पर प्रिंट करना है। रो तो 1 2 3 4 चेंज नहीं हो रहा, कॉलम वैल्यू चेंज हो रहा है, तो के पर प्रिंट करने के लिए के वैल्यू 11 को हमें काम में लिया है। तो सेल्स के अंदर लिखने के लिए सेल्स 1,11 डॉट वैल्यू फर्स्ट एरे एलिमेंट, सेल्स 2,11 मीन सेकंड रो, ए कॉलम के अंदर फर्स्ट मीन सेकंड आइटम लाइक थर्ड फोर्थ। लेकिन पहले एरे 0 लिखा था, अभी हम क्या करना है, मेरा अभी एरे नाम चेंज किया x, तो x करता हूं मैं, देखिए आप लोगों का सामने चेंज कर रहा हूं मैं। फिर इसको क्या करूंगा मैं, एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ कोडिंग को बटन का बैक एंड में पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, देखते रहिए। एरे चेंज किया ना, वही एरे लिखना पड़ेगा। ये 6 लाइन से होता है क्या है, 6 रो का अंदर x of 1 0 में क्या लिखा हमने 100 एज स्ट्रिंग, फिर VB स्क्रिप्ट, फिर 100, देन डेसिमल पॉइंट, डेट, टाइम, वो वैल्यूज एक्सेल शीट पर प्रिंट करेगा। ये रहा इधर कॉपी किया उस बटन के बैक एंड। इसीलिए 6 लाइन से तो 6 बार किया हमने, अगर 100 वैल्यूज लिखना है तो 100 लिखना पड़ेगा,
प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, लूप में यूज करते रहते हैं। भैया मैं 100 वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, 100 बार ये सेंटेंस लिखना है, तो 100 टाइम्स मींस इट विल टेक टाइम। अगर एक जगह पर मिस्टेक किया तो कॉपी पेस्ट किया तो सब में मिस्टेक है, तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो 100 के लिए 100 बार लिखने के वजह से लूप के अंदर लिखने से आराम से कम स्टेटमेंट्स के अंदर 100,000 वट एवर इट मे बी, तो वही लूप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम पहले इसको देखते हैं। नाउ प्लीज look at here, we are checking that result. Okay, so then what happened, array different data types, डिजाइन मोड से बाहर आया मैं, फर्स्ट बॉक्स इसमें प्रिंट करेगा, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, क्योंकि मैसेज बॉक्स यूज किया हमने। फिर मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करने के बाद एक्सेल शीट पर प्रिंट कर देते हैं। देखिए वैल्यू स्टोर्ड इन एरे 0 में फर्स्ट हमने क्या दिया, 10 दिया, तो 10 प्रिंट कर रहा। देखिए द स्क्रीन पर वन ऑफ वन लोकेशन में VBA स्क्रिप्ट लिखा है, VBA स्क्रिप्ट प्रिंट कर रहा है वो। सेकंड में 100 प्रिंट किया। थर्ड में 2.45, ये रहा 2.45। फोर्थ में 425 मींस अब पहले डेट दिया है 25 तारीख अप्रैल 2020। फिर देन फिफ्थ सब्सक्रिप्शन में ये टाइम 12:45:00। अब देखिए इधर एरे नोटेशन के साथ लिखा कोडिंग, आप उस एरे लोकेशन के इंडेक्स वैल्यू प्रिंट किया सामने, और इतना से क्या आप समझने के लिए कोशिश करिए प्लीज। हाँ सो ये हो गया। अब ये ओके बटन दबा दिया मान लो, तब क्या होगा, सेल्स 1, 11 डॉट वैल्यू इंप्लीमेंट करेगा, सेल पर लिखेगा के, फिर सेकंड रो के पर 1 का अंदर क्या लिखा है VB स्क्रिप्ट, वो प्रिंट कर देगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू 10 प्रिंट किया, सेकंड में VB स्क्रिप्ट, थर्ड में 100, फोर्थ में 2.45 सेंड लाइक। ये कैसे आया है, ये रहा, ये सेल्स 1, 11 डॉट वैल्यू, ये जो लिखा है ना मैं, इसी का कारण से एक्सेल शीट पर लिखा है। सर ये तो है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम, एक एम्प्लॉय का कोड नेम, या तो स्टूडेंट का क्या है नेम एंड मार्क्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर एंड नेम अगर रीड करना है तो कैसे कर सकते, अरे डिफरेंट डाटा इन मल्टीपल कॉलम्स, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ लुक एट हियर, ये तो समझ में आया होगा। एक सिंगल डायमेंशनल एरे का अंदर डिफरेंट अलग अलग डाटा टाइप को स्टोर करने का तरीका है ये। अब मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स मींस मल्टी डायमेंशन मींस मोर देन वन डायमेंशन, एटलीस्ट सिंपल 2 डायमेंशन रोज एंड कॉलम्स। सो रोज एंड कॉलम्स क्या है, फर्स्ट कॉलम में मैं स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट नेम, अगर थर्ड कॉलम में मार्क्स भी स्टोर कर सकते हैं 3/3। अगर रो कॉलम 3/3 का जगह पर 4 यूज कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, लूप का सहायता से लिखने के लिए सब पहले 2/2 में लिख देंगे हम बिना कंफ्यूज से। तो लास्ट क्लास में हमने बताया है 2/2 लिखा है तो क्या 0 से शुरू कर देगा 1 2। ठीक है, अगर आपने दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर डेली अगर आपने अटेंड किया तो डिम एस नेम ऑफ स्टूडेंट नेम, क्या करने के लिए कह रहे हैं हम, आपको कितना स्टूडेंट्स को स्टोर करना है, 5 स्टूडेंट्स को स्टोर करना है, रोल नंबर नेम 2 कॉलम्स, बस इतना ही है। तो क्या हमें डेटा का बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब मैं केवल इंटीजर, केवल स्ट्रिंग या तो लॉजिकल ऐसे कोई भी डाटा स्टोर नहीं करना चाहता हूं मैं। मिक्स्ड डाटा स्टोर करने के लिए डिम वेरिएबल नेम, आगे मल्टी डायमेंशनल ब्रैकेट्स अंदर 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 5 रोज एंड 2 कॉलम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए, एस ने 2, 2 छोटा चीज पहले समझने के लिए कोशिश की, तब तो बड़ा चीज समझ में आ जाएगा। अगर 2, 2 मीन्स क्या होगा, बहुत बार हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में भी, डिजाइन मोड में जाके बटन को थोड़ा आगे करना चाहूँ, क्या है एस नेम ऑफ 2, 2 मीन्स वेरिएबल नेम भूल जाइए, 2, 2 मीन्स 0 से सब्सक्रिप्शन है, 0 1 2। फिर इसकी कॉलम्स के लिए भी 0 हो गया, 1 कॉलम 2 थर्ड वन। ठीक है, सो दिस इज ना फोन चुना, तो मीन्स ये क्या हुआ, क्लास लो चैप्टर 2
क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्लीज लुक एट हियर, ये रो 1 है। और क्या डिफाइन करूं मैं, तो डिजाइनर तो है ही नहीं। रो 1 का वो वाली बता रहा है, ये रो 2 रो 3। सर रो 3 बता रहा हूं लेकिन टू रिप्रेजेंटेशन क्यों, जीरो ऑलरेडी है, इसीलिए आपको इतना समझ में आना चाहिए ये रोस है बस। ये जीरो रो फर्स्ट रो सेकंड, इस तरह कॉलम्स की बात करते हैं। सो कॉलम 1 हो गया है, तो ये कॉलम 2 कॉलम 3। लास्ट क्लास में भी बताया मैंने, ड्यू टू दैट इट विल टेक टाइम, ये समझाने में टाइम लग रहा है। लुक एट हियर, तो अब क्या आगे क्या होगा सर जी? अब इसको कंटिन्यूशन क्या है, मतलब ये पूरा कॉलम की बात करते तो वन ही कॉलम है। अगर ये 2 कॉलम, अगर इस रो 1 ये बता दिया हमने, अगर दोनों को कैसे बताएंगे? फर्स्ट इसको भी जीरो है, अगर बाहर लिखिए, मतलब और भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इतना तो ये कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम, सामने लिखते हैं 0 1 2, ये है क्या, रो नंबर्स। तरह कॉलम को भी रिप्रेजेंट करेंगे। आज ये फाइनल क्लास, लुक एट हियर, बार ये नहीं, 0 1 2। सो देन अब क्या कह रहे हैं हम, ये कॉलम्स वैल्यूज हो गया है, ये रोज वैल्यूज हो गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है सर, ये वाली है ना, ये है असली एरिया। तो अब इसको क्या, फर्स्ट रो बताते हैं बाद में कॉलम। सो रो जीरो हो गया, कॉलम भी जीरो है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें समझने के लिए ब्रैकेट लगा है बस, ठीक है। सो इसका फिर रो 0 कॉलम 1, तो फर्स्ट 0 1, इंडेक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूं, मल्टी डायमेंशनल। रो तो वही है, कॉलम टी ऊपर देखे 2, तो ये वाला। इसी तरह क्या होगा, अगर रो 1 कॉलम 0, फर्स्ट रो बाद में कॉलम, पर्टिकुलर लोकेशन की बता रहे हैं हम। रो तो 1 हो गया, कॉलम क्या है 1, तो ये डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, सर 1 1 है, कौन सी वाली कॉलम है कौन सी वाली रो, फर्स्ट 1 रो सेकंड 1 कॉलम। अब ये रो 1 कॉलम 2, तो क्या हुआ, फर्स्ट रो की बात करना है 1 कॉलम 2, सो हियर इन द सेम वे फर्स्ट रो वैल्यू क्या है 2, थर्ड रो है 0 के कारण से 2 कामा कॉलम क्या है 0। ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रैम का अंदर असली में इसको डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1, सो ये रहा। अब हमारा एक्सेल में 0 रो 0 कॉलम तो है ही नहीं, इसलिए हम 0 वाली पोर्शन छोड़ के इंटरनल ये पोर्शन को काम में ले रहा है 2 कामा 2। ये सपोज हमने एक फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, डस्ट वगैरह आ जाएगा, साफ गिफ्ट निकलेगा, तो क्या करेंगे लोग, ग्राउंड फ्लोर में रखने के लिए, रहने के लिए राजी नहीं होता है। तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर खाली, तो हमने क्या किया, जीरो को छोड़ देते हैं हम। एक्सेल में अगर रो कॉलम के बारे में 1 2 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को काम में ले सकते हैं। अगर आपका अंदर दिमाग है, मैनेज कर सकते हैं, जीरो का साथ 1 जोड़ के कॉलम रोज को मैनेज करना चाहता है तो भी कर सकते हैं। ये है हमारा एरिया है, कौन सी एरिया, अगर डायरेक्ट रो की मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये रहा। क्योंकि 1 रो है एक्सेल में 1 2 3 4, जीरो तो है नहीं, कॉलम्स एबीसीडी इसको 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एरिया को डायरेक्टली काम में लेने के लिए वी आर अवॉइडिंग 0 रो एंड 0 कॉलम्स। So this is the final discussion about the multi-dimensional representation. अगर 3 है तो आगे कॉलम बढ़ा दीजिए, रो भी बढ़ा दीजिए, इस तरह चलता है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, 5 स्टूडेंट्स का क्या करना है, फर्स्ट रोल नंबर सेकंड नेम रीड करना। सो 5 स्टूडेंट्स का करना है, तो 5 कामा 2 बताया ना, तो 5 कामा 2 बताए, तो फिर 2 में क्या 0 1 2, क्योंकि 0 भी है इंक्लूडेड, 5 है ना, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 अप टू 5, अप टू 5 है तो क्या होगा 3 4 5, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर एंड नेम।
अगर इसको मैं कॉपी किया तो क्या होगा, रो बदलेगा इधर, जीरो से हमें कोई लेने देना नहीं, लेकिन पूरा संपूर्ण तरीके से आपको समझा के छुट्टी करना चाहते हो। इधर 5 इधर क्या है, इसको भी कॉपी कर देते आप, समझिए बात। अब क्या, रो तो वही है, सपोज इधर क्या करना है, थर्ड करना, कॉलम सेम बदलेगा नहीं, नीचे तरफ से जा रहे हैं तो रो बदल रहा है, कॉलम सेम। यू आर ट्रैवलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मींस कॉलम इज सेम, रोस आर डिफरेंट। अब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, रो सेम, कॉलम बदलेगा। तब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, रो 3 कॉलम वही है, रो 4 प्लीज। अब ये है, इसको हम काम में ले रहे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, थर्ड स्टूडेंट का, फोर्थ का, फिफ्थ का, स्टूडेंट का नेम, सेकंड स्टूडेंट का नेम, थर्ड स्टूडेंट का, इस तरह। अगर आपको और समझ में आने के लिए क्या करेंगे, हम इधर रोल नंबर लिखेंगे, नेम लिखते हैं, ठीक है। देन अब प्रोग्राम क्यों इतना मैनेज कर रहे हैं, तो कोडिंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज आपको फंडा समझ में आने के लिए। तो कैसे करते हैं हम, देखिए अब कोडिंग लिख रहे हैं ना हम, इसको मैनेज करना है, दो लूप से कंटिन्यू करना है। फर्स्ट में रो वाइज रीड कर रहा हूं, देन कॉलम वाइज। तो रो वाइज के लिए देखिए इधर मेन फंडा लिख रहा हूं, अब बटन के अंदर चले जाएंगे। फॉर रोज को मैं कैसे करूंगा, ये रो है, रोज को मैं कॉलम मींस आई लूप से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, आई। तो आई इज यूज्ड एज ए रो, रो को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई को काम में ले रहा हूं, वेरिएबल आई को। ये कॉलम्स को क्या है, जे से रिप्रेजेंट करूंगा, जे, ठीक है। तो इसका क्या है, कुछ अलग कलर, रेड कलर, ठीक है। तो सेंटरिंग ये है रोज, आई क्या है, रोज। ये जे कॉलम्स हो गया 1 2 3 4। अब देखिए प्लीज, फॉर आई इज इक्वल टू मीन्स, मैं रो का बारे में बता रहा हूं, आई इज इक्वल टू पहली रो से लेकर टू कितना तक, पांचवी रो तक 5 स्टूडेंट्स को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 रोज, 5 स्टूडेंट्स, रीडिंग पर्पस 5 rows are used.
Hello, students. I think मिस्टर गुरुवलु के एंड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है. हमने करेक्ट करने का कोशिश किया, बट गुरुवलु सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो आई गेस हमें यहीं पर ही क्लास ख़त्म करना पड़ेगा. किसी को कुछ भी डाउट्स है तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आप अगली क्लास के लिए आपको बता दिया जाएगा. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.